Good afternoon, sir. हाँ क्या ये तो चल ही नहीं रहा है बढ़िया Good रुक रहा है afternoon, sir. Good afternoon, my dear Good students. afternoon, sir. सर My dear, वीडियो रुक क्या रहा है सर check your network, bete, because here is a good network. My dears, Good afternoon, sir. today we have to Good discuss, afternoon, sir. we have to study, and we have to know some different thing. At the very first, if you all are having your book, Beehive, Beehive book, find out the page uh, 46, because on the page 46, chapter number 4 is given. A truly beautiful mind. Sit down. A truly beautiful mind. About Albert Einstein. Yeah, you must sit. Yeah. My dear students, let me tell you about the title at the very first. A truly beautiful mind means Good afternoon, sir. good afternoon. A truly beautiful mind, वास्तव में सुंदर मन. Actually, this is the story of Albert Einstein, which we are about to study. In this story, we have to know the short autobiography of Albert Einstein. Before you read, means before we start the chapter, is given something. What do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Really is very tough to reply this question, that who is genius and what are the qualities of a genius. Genius सब जब हमारे सामने आता है, simply we can say someone who is excellent in study. We can say that he is genius or she is genius. हम उसे genius कह सकते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है. But there is but. लेकिन यहाँ but लगा हुआ है. But is it really definition? Is it real definition of genius? क्या अगर कोई जीनियस है तो उसका ये रियल डेफिनेशन है कि वो पढ़ने में अच्छा हो तो वो जीनियस कहा जा सकता है? Perhaps not. No. As I think, according to me and according to the chapter, the student or the person who is very excellent in his study can't be called genius. Then who can be called genius? Oh, this is the question. This is a serious question, and the answer of this question we have to find when we have to study the uh, biography of Albert Einstein. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago in the summer of 1905. The 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the dynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. अभी हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो साइंस के संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया और समूचे संसारवासी उसके नाम को समझ सके.
एक बहुत ही ब्रांड के साथ वह हमारे बीच आया और बहुत सारी चीजों को हमें सौंपा। बेटे एक्चुअली आप सोच सकते हो, हमारे साथ एक चीज सोचें आप देखिए तो हमारे यहाँ के किसी भी साइंटिस्ट ने कोई इस तरीके की चीज बनाया जो हमें सीधे हमारे जीवन को इजी कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइकिल, बिकॉज इट मेक्स अस वेरी इजी। टीवी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, फोर व्हीलर, इन सभी चीजों को जब आप देखेंगे, ये जितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन को बहुत आसान बनाती हैं, इवन मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, दीज आर द थिंग्स, ये सभी चीजों को खोजने वाला भारत का नहीं है। बेटे एक्चुअली हम पूजा ही कर्म है इसमें विश्वास रखने वाले हैं, वर्शिप इज वर्क इसमें विश्वास रखने वाले हैं। हम भारतीय इस परंपरा को मानने वाले हैं। बट वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, इसको ये तो फॉरेन कल्चर का स्टेटमेंट है। कर्म ही पूजा है, जो कार्य हम कर रहे हैं वही पूजा है। अब आपको अलग से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो काम कर रहे हैं वही ईमानदारी से करें, दैट इज वर्शिप। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूजा को कर्म माना जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई पूजा है तो बड़े से बड़ा बिजनेस हम रोक सकते हैं अपना, चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। वी गिव फर्स्ट प्रायोरिटी द वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की पूजा को हम लोग प्रथम स्थान देते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आइंस्टाइन था। Many times, my dear students, you have listened the name of Einstein, and when your science teacher teaches you in the class, definitely he or she uh, talks about Einstein because he has become a great example for science students. सबके लिए, not especially for science students, सबके लिए ये एक great example है, and we must learn many things from his life. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, at the very first question arises here, Einstein, the spelling of Einstein. बेटे सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चलो आइंस्टाइन का स्पेलिंग बताओ। तो प्लीज check yourself that you know the spelling of Einstein or not. If you don't know, please. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was desired for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. भैया कहते हैं होनहार बीरबान के होत चीकने पात, मतलब होनहार बच्चे की पहचान जन्म से ही हो जाती है। उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिससे ये पता चल जाता है कि आगे चल करके बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, बहुत महान आदमी बनेगा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को पैदा तो हो गए थे जर्मनी के उल्म सिटी में, बट विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कहीं से भी उनके अंदर ग्रेटनेस नहीं देखी जा रही थी। एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी बी रिलीज ओनली फॉर 1 मिनट। हाँ सर। प्रीति लिखा हुआ है, किसने ये लिखा है? गलत ही लिख दिया है। आधार कार्ड से मतलब नहीं है, उसको आप बाद में सुधरवाइएगा। मेरे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग मैं भरूंगा। और नहीं, इसको अगर आप सुधरवाना चाहें तो प्रीति कराइए, प्रीति लिख दिया है।
फ्री करके जैसे मैंने कर दिया है निर्विकार करके आप ही बनाना। नहीं सर अरे नहीं है पढ़ने में तो इसी तरह आ रहा है सर इतनी कम में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए और तुम्हारी नहीं होना चाहिए। वो आपको उसमें हाँ स्कूल में आपको जाना पड़ेगा, आप फॉर्म भर दीजिए और इसको सुधरवा करके उसको के बाद में दे देते हैं कैसे सुधरवाना है आप दे दीजिए सर हाँ जी, आप 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। नाउ लेट्स कम। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। 14 मार्च को ये उल्म में पैदा हुआ था। उल्म इज अ सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी के उल्म सिटी में पैदा हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, और किसी तरीके की उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जिससे ये कहा जा सके कि आगे चल करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत महान साइंटिस्ट बनेगा। मीन्स हिज लुक वाज नॉर्मल, वो एकदम नॉर्मल जैसे जनरल बच्चे पैदा होते हैं उसी तरीके से वो पैदा हुआ था। बट ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक, द मीनिंग ऑफ फ्रीक इज गिवन इन योर बुक। Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. लेकिन एक बात थी, माँ ने सोचा ये कहीं फ्रीक हो जाएगा। ऐसा वो इसलिए सोचा कि एक थोड़ा सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था? His head seemed much too large. उसका जो सिर था वो थोड़ा बड़ा था। जो जनरली बच्चे पैदा होते हैं उन सबसे थोड़ा वो बड़ा था उसका सिर। तो माँ ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्रीक हो जाए, मतलब ये किसी की बात नहीं सुने, किसी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेले नहीं। माँ इस बात से थोड़ी डरी, वह सोची भी। लेकिन एट द एज ऑफ 2.5 व्हेन ही वाज 30 months ओल्ड, जब वो 30 महीने का पूरा हो गया, मतलब 2.5 साल का, आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, अब भी बात नहीं कर रहा था। घूरा की था, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह चुपचाप ऐसे देखता रहता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उसने कुछ बोलना शुरू किया, and when he started to speak something, तो वो 2 बार बोलता था, बहुत कंफ्यूज करता था। वैसे भी जो टॉकेटिव चिल्ड्रन होते हैं, वी डोंट लाइक them to sit behind all around us. हम अपने आसपास उन ऐसे बच्चों को बैठाना नहीं चाहते क्योंकि they shut our minds. वे लोग हम लोगों का दिमाग चाट देते हैं। ऐसे बच्चों को हम पसंद नहीं करते हैं। और ये तो उन सबका बाप था। कैसे? क्योंकि ये हर बात को 2 बार बोलता था। As he wanted water, 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 mother, mother, give me, give me, yeah. इस तरीके से लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट 2 बार बोलता था। हर एक शब्द को 2 बार बोलता था। अब सोचिए, हाउ डू यू फील इफ यू फाइंड सच टाइप ऑफ बॉय? यदि आपको ऐसे बच्चे से मुलाकात हो जाए तो कैसा आपको लगेगा? या तो आप अपने कान को बंद कर लेंगे या तो फिर बाकी सब आप जानते ही हैं। He uttered everything twice, वो 2 बार बोलता था। Einstein didn't know what to do with other children. ओहो, he didn't know, उसको ये पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ हमें क्या करना है। And his playmates called him brother boring. और उसका नाम, उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके साथ खेलने वाले, उन लोगों ने उसका नाम रखा था ब्रदर बोरिंग, मतलब चाटू। चाटू का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। हाँ, जो थोड़ा दिमाग चाटता हो उसका नाम हम लोग शॉर्टली रख देते हैं, अरे पूरा चाटू है। इसके पास जाओगे, या टीबी आप कह लो, हम लोग बहुत सारे लोगों का नाम टीबी भी रख देते हैं। भैया ये टीबी है, खुल जाएंगे तो बंद नहीं होंगे, चाहे लाइट आए चाहे लाइट जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स, ब्रदर बोरिंग वन नेम वाज गिवन बाय हिज प्लेमेट्स। उसके जो साथी थे उन लोगों ने उसका नाम रखा था ब्रदर बोरिंग, मतलब चाटू। शो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। अब कोई उसको ब्रदर बोरिंग करके उसको अलग कर देता था। एंड एट लास्ट ही बिकेम अलोन। नो वन कुड हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करता। नो वन कुड प्ले विद हिम, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। इसलिए द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही खेलता था, वो खुद से खेलता था। और
मच ऑफ द टाइम, 24 घंटे में 20 घंटा तो अपने आप में ही वो रहता था, अपने आप से ही खेलता था. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" He especially loved mechanical toys. उसको mechanical toys बहुत पसंद थे. अब ये mechanical toys क्या है? If you don't know, for your kind information, let me explain. Today's children, आज के जो बच्चे हैं, don't like mechanical toys. Some like mechanical toys, but some don't like. वैसे मोबाइल भी एक टॉय, कोई इसको टॉय की ही संज्ञा दे लेते हैं, और मोबाइल किसको पसंद नहीं है. लेकिन जैसे चाबी वाली कार होती है, चाबी वाला एरोप्लेन होता है, मोस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ टॉयज आर बीइंग सोल्ड इन मार्केट प्लेसेस. हम लोगों में से बहुत कम लोग इस तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस तरीके की चीज़ों को बहुत पसंद करता था जिसमें कुछ मैकेनिक का काम हो, जिसमें कुछ वो करता रहे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी एक छोटी सी बहन पैदा हुई थी जिसका नाम माजा रखा गया था. ही इज शेड टू हैव शेड, उसे ये कहने के लिए कहा गया, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. लेकिन वह उससे पूछ रहा था कि वेयर आर हर व्हील्स, पहिया कहाँ है उसका. So a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. बेटे, one day he had joined a school and the headmaster of the school told to his father that your son will be unsuccessful. Whether he accepts, whether he selects anything, any type of business, any type of doing any type of work, but he will be unsuccessful. कहा कि चाहे आपका बेटा किसी तरीके का कार्य कर ले, अच्छा बिजनेस कर ले, अच्छी नौकरी में चला जाए, बट आफ्टर ऑल ही विल बी अनसक्सेस, वो असफल हो जाएगा. ऐसा हेड मास्टर साहब ने कहा. तो हम शिक्षक कभी कभी बच्चों को ताड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनके आईक्यू को, इंटेलेक्चुअल जो उनकी लब्धि होती है उसको समझ नहीं पाते हैं और गलत तरीके से बता देते हैं. तो माय डियर्स, शिक्षक ने तो ये बता दिया, कह दिया ये कभी सफल नहीं हो सकता है. बट आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में उसने वायलिन शुरू किया. क्यों? बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, उसकी माता जी ये चाहती थी कि मेरा बेटा वायलिन सीख करके, और ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट. माता जी उसकी चाहती भी थी. हिज मदर वॉन्टेड टू मेक हिम अ गुड अमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. वो चाहती थी कि ये बन जाए एक वायलिनिस्ट, मतलब वायलिन बजाने वाला. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल. माय डियर्स, अभी आप बहुत छोटे हैं, बट बताऊं कि इन द सीरीज ऑफ कैरियर, व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट कैरियर, वैसे हमारे भीतर ये बात भरी जाती है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, जीवन में अपने क्या बनना चाहते हो. सम से डॉक्टर, सम से इंजीनियर, तमाम तरीके की बातें होती रहती. बट आफ्टर ऑल, डोंट फॉरगेट दिस, that you have to face so many difficulties and so many turning points you will get in your career. अपने करियर के थ्रू की तरफ जब आप बढ़ेंगे, कई सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और सही पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात. तो इनको वायलिनिस्ट बनाने के लिए माता जी ने प्रयास किया, लेकिन हुई है सोई जे राम रचि राखा. वही होगा जो ईश्वर चाहेगा. ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल. वह बहुत ही खराब पुपिल नहीं था. पुपिल मतलब शिष्य होता है. He went to high school in Munich. Munich is the city of music. Munich is a city of Switzerland. Sorry, Germany. जर्मनी का एक शहर है. तो हाई स्कूल करने के लिए आप म्यूनिक जाते हैं. Where Einstein's family had moved when he was
15 months old, जब वो 15 महीने के थे तभी उनके परिवार वाले वहीं पर शिफ्ट हो गए थे, इसलिए उनको वहीं के स्कूल में जाना पड़ा। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर करते थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स, एज आदित्य, आकाश यादव, आलोक पांडे, अमन कुमार यादव, अंकित? मीन्स आप सोचिए कि क्या आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं? आर यू गुड इन मैथमेटिक्स? आर यू गुड इन साइंस? केवल आप पढ़ते हैं कि आप अच्छे भी हैं? बेटे, टू बी एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि यू कैन बी कॉल्ड अ गुड स्टूडेंट और एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने मेंटेन करने पड़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई फाइंड मेनी टाइम्स कि दे हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी और इंग्लिश, मीन्स किसी एक सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती है। माय डियर्स, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ interest, this is the matter that how you can be called an excellent or genius student। तो बेटे इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट आपके मजबूत रखने पड़ेंगे। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाता था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन एक बात थी, अच्छे मार्क्स तो ये लाता था, लेकिन एक गलती ये भी करता था। स्कूल रेजिमेंटेशन, जो विद्यालय का अनुशासन होता है, वो इसको पसंद नहीं था। ये फ्री रहने वाला आदमी था। आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, वहां बड़ा ही सफोकेशन उसको लगता था, घुटन सा उसको होने लगा, देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, इसलिए उसने स्कूल ही छोड़ दिया। कीप इन योर माइंड, इट वाज हिज डे, उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन आज इफ यू आर going to decide that you are about to leave the school for always, so it's not depend on you, it's depend on your parents। आज आपके पेरेंट्स पर ये डिपेंड करता है, बिकॉज फी तो वही दे रहे हैं ना। खैर, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, पहले वर्ष में अल्बर्ट के पेरेंट्स जो है मिलन चले गए। एंड क्या पहला और दूसरा ये समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? Let me, बेटे, actually high school has 2 years, class 9th and class 10th। if you are the students of class 9th, it means you are reading in high school first year, and high school second year means class 10th। intermediate, which is called in Hindi antar madhyama, this is called madhyama। high school means madhyama in Hindi, and antar madhyama means intermediate। it has 2 class also, class 11th and class 12th। if a student is reading in class 11th, he is also the student of class intermediate, and if he is in class 12th, means he is also in intermediate। so let me clear once again that Einstein was, no, the previous year means when he was in class 9th, Albert's parents had moved to Milan, तभी वो मिलन चले गए थे, and left their son with relatives, और अपने बेटे को वहीं छोड़ गए थे अपने रिश्तेदार के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। बहुत ही डिस्कस हुआ, उसके बाद ये फाइनल हुआ। देन दे हैड डिसाइडेड दैट ही विल रीड, कि उसको पढ़ाया जाएगा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड नामक इंस्टीट्यूशन में, जो कि म्यूनिक वाले स्कूल से बहुत अच्छा था। बेटे, आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, वो हाईली गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में, बट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स आल्सो, लेकिन उसकी रुचि जो है फिजिक्स में भी बहुत अधिक थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उसका स्कूल समाप्त हुआ, he decided to study at a university in Zurich। अब वो जुरीक में पढ़ने जाना चाह रहा था। जुरीक क्या है? नॉर्थ पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। इट इज नॉर्थ पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नॉर्थ वाले पार्ट को जुरीक कहते हैं। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the warless mustache। वॉरलेस मतलब होता है दरियाई घोड़ा, और मुस्टैच मतलब उसकी मूंछ। जिस तरीके से दरियाई घोड़ा दौड़ने के लिए आतुर होता है,
उसी शक्ति के साथ, उसी उत्साह के साथ ये भी साइंस की ओर आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो क्या होता है, he also felt a special interest in a fellow student। बेटे ये तो सब चल ही रहा है, ये चीज आपको फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने जो थियरी हमें दिया, इस संसार वालों को दिया, वो बहुत ही अच्छा दिया। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों चीजों का समावेश होता है। सिर्फ एक ही ऐसा सजीव है जिसके अंदर किंचित मात्र भी बुराई नहीं है, और वो है गॉड हिमसेल्फ। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। बिकॉज गॉड हिमसेल्फ इज कॉल्ड सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है और वही सुंदर, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। Except him, everyone is having two qualities, one good quality and one bad quality। सबके अंदर तो एक सद्गुण है, एक दुर्गुण है। बेटे अब आइए, इसके अंदर क्या बुराई थी? He also felt a special interest in a fellow student, Maliva Fabric Merrick। इनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी, उनको वो बड़ा पसंद करते थे, मिलेवा मैरिक। मीन्स ही लाइक द गर्ल शी वाज रीडिंग विद हिम नेम्ड मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, means who was so much excellent। This young serb, आपको यहाँ समझना चाहिए, young मतलब छोटी और सर्ब मतलब, सर्ब कहते हैं पीपल ऑफ सर्बिया। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, वैसे सर्बिया के लोगों को सर्ब कहा जाता है। तो वो सर्बिया की रहने वाली थी। सर्बिया की वो छोटी सी बच्ची हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई हुई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। उन दिनों, दोज डेज, जो स्त्रियां थी, लेडीज थी, उनको डिग्रीज देने के पूरे यूरोप में बहुत कम स्थान थे। उसमें ज्यूरिख वाला स्कूल भी एक था, इसलिए वो आई हुई थी। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines। ally मतलब अ फ्रेंड, उसके अंदर उन्होंने एक मित्र को देखा कि, और वैसे भी गर्ल्स आर गुड फ्रेंड, लड़कियां सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। इट हैज बीन सेड नॉट बाय मी, बाय सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है। तो बेटे मेलिवा के अंदर उन्होंने एक अच्छे मित्र को देखा। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love। दोनों तरफ के पेरेंट्स जो थे, the family members of Meliva and the family members of Einstein, both were against। दोनों एकदम उल्टा थे। उल्टा मतलब इनके प्रेम पर मुहर वो लोग नहीं लगा रहे थे, वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे, दोनों फैमिली मेंबर्स। द कपल फेल इन लव, लेकिन दोनों के बीच प्रेम हुआ। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। wrote Einstein, how happy the proud and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। पत्र व्यवहार भी दोनों के बीच चलने लगा, लेकिन वो पत्र व्यवहार हमारी तरह नहीं था। हेलो डियर, हाउ आर यू, आई एम वेरी सैड हियर एंड यू विल बी फाइन देयर एज आई थिंक, बट आई विश यू ऑलवेज। सच ऑफ words we write in our letter, but when Einstein used to write a letter, when Mileva used to write a letter to him, and when Einstein used to write a letter to her, bete both used to take the help of science words। As one example is given here, how happy and proud I shall be, let me, the recording is going or on here। तो क्या लिखता है वो अपने पत्र में
कहता हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों, हम हमारे कार्य को, जो कार्य हमारा रिलेटिविटी से रिलेटेड जो चल रहा है, जब उसको विक्टोरियस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचा देंगे, वी शैल बी वेरी हैप्पी, तो हम लोग बड़े ही प्रसन्न होंगे। दे वर नॉट टॉकिंग बाय देयर लेटर अबाउट physical relation, they were talking about victorious conclusion of their theory of relativity. In 1900, at the age of 21, 21 साल का जब वो हो गया छोरा, वो छोरा 21 साल का जब हो गया 1900 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, एकदम बेकार था, ग्रेजुएट था, यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन पास किया था लेकिन एकदम बेकार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो कुछ दिनों तक टीचिंग असिस्टेंट का काम किया। gave private lessons and finally secured a job in 1902, मतलब 2 वर्ष बाद उसको एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब देखिए पेटेंट, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट और एन इन्वेंशन, मतलब एक ऐसा पत्र जो आपको अथॉरिटी देता है कि आप किसी तरीके की खोज कर सकते हैं। तो खोज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके की खोज खुद भी कर लेंगे, उसके लिए आप अथराइज होने चाहिए। तो उसको वो अथराइज था खोजने के लिए। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. Einstein धीरे धीरे अपनी सोच को उजागर कर रहा था, वो किसी से शेयर नहीं करता था कि उसे अगला उसका कदम क्या है। और हम लोग तो इतने ओपन माइंड हैं कि अपने दोस्तों से एक भी चीज हम छिपा नहीं पाते हैं। कैन यू हाइड वन थिंग फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स? फैमिली मेंबर्स से हम लोग बहुत सारी बातें छिपा सकते हैं। वी कैन हाइड मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स बट नॉट फ्रॉम आवर मित्र, इट मीन्स फ्रेंड्स। अपने मित्रों से हम बात नहीं छिपा सकते हैं। बेटे ये सेक्रेटली कुछ कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work of Bureau of Theoretical Physics. अब चूंकि किसी कुछ बताता नहीं था, हमेशा बिजी रहता था, इसलिए एक नाम और इसको दे दिया गया। पहले तो इसको ब्रदर बोरिंग चाटू नाम रखा गया था, जब खूब ये बोलता था। बट नाउ ही हैज बिकम सो मच सीरियस, लेकिन अब इतना सीरियस हो गया है, इतना सीरियस हो गया किसी से कुछ बोलता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम अब ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स रखा गया है। मतलब फिजिक्स का दादा इसको कहा जाता है। जाओ फिजिक्स के बाबूजी के पास जाओ, फिजिक्स के बाबूजी अपने टेबल पर बैठे होंगे, वहां जाओ। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 ईस्वी में, बस बेटे बस आज यहीं तक पढ़ेंगे। 9 वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि बातचीत करने का थोड़ा समय चाहिए आपको। तो लेट अस स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ आवर क्लास is going to be over. So have a nice day. Thank you, sir. Yeah, thank you.